Good morning, everybody. Now, today we are selecting the topic, which is, I think, very difficult topics for me because since last 25 years I'm teaching in costing and accountancy, and Parag Rawat sir would be giving me the topics for auditing. So, you all people have a lot of practice and practical aspect of the auditing, and today we take up a few essay for the discussions, and that essay what I select today for discussions, that is a series of 500 and series of 700. Series of 500 is connected with the audit evidence, and series of 700 is connected with the audit reports. So let me see what exact discussions on. Now, first things what I want to elaborate, that is nothing but SA 500, that is audit evidence. Before we create friends, so opinion for our audit report, it is very important to collect proper audit evidence, and that evidence would be sufficient appropriate audit evidence. यहाँ पे दो वर्ड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड्स है सफिशिएंसी और दूसरा वर्ड्स है appropriateness. तो पहले तो हमें ये जज करना है कि what is the meaning of sufficiency and what is the meaning of appropriateness. जब हम बात करते हैं sufficiency की, तो that is connected with quantity. मतलब हमें sufficient quantity में अपने ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करना है जो हमें सेटिस्फेक्शन दे पाए कि हम अपना ओपिनियन ट्रू एंड फेयर व्यू क्रिएट कर पाएंगे. अब ये सफिशिएंट जब बात करते हैं कि इट इज कनेक्टेड विद द क्वांटिटी, तो किस तरह से हम वो क्वांटिटी को डिसाइड करेंगे, दैट बेस्ड ऑन द टू पैरामीटर. वन इज द रिस्क फैक्टर एंड सेकंड इज द मटेरियलिटी. मतलब हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि यदि हम किसी एरिया पे ऑडिट कर रहे हैं, दैट इज कवर अंडर कारो, so it is direction given by the central government कि you need to check very carefully. So there we need to increase our friends verification and audit evidence in that particular area, because it is a material and it is required under friends caro or statute friends. And other side we can say it must be review friends risk factors in that area. यदि हमें लगता है कि risk factor ज्यादा है तो हमें ज्यादा एविडेंस को इकट्ठा करना पड़ेगा. यदि रिस्क फैक्टर कम है, then we can run with the lesser number of friends audit evidence. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर what is then connected with the appropriateness. Appropriateness is connected with the quality. मतलब यदि एक बढ़िया ऑडिट एविडेंस हमारे पास है तो वो मल्टीपल फ्रेंड्स जनरल ओपिनियन से अच्छा है, क्योंकि यदि हमें एक अच्छे रिलायबल रिसोर्सेज से audit evidence मिल गया है तो that is sufficient to cover friends number of audit evidence coming from the non reliable source. तो पहली चीज हमें देखना है कि हमारा जो audit evidence है that must be relevant, and number two it must be friends from reliable source. तो relevant हम कैसे जज करेंगे? सीधी सी बात है कि हम जब किसी भी चीज को एज ए एविडेंस के तौर पे ले रहे हैं तो हमें देखना है कि वो एविडेंस कौन से पीरियड के साथ कनेक्टेड है. यदि कोई पास्ट डेटा है जिसकी आज की तारीख में कोई रिलेवेंसी नहीं है, तो फिर वो ऑडिट एविडेंस को हम एप्रोप्रिएट नहीं गिन सकते. और दूसरी चीज हमें जो चेक करना है कि आवर सोर्स मस्ट बी फ्रेंड्स reliable, and that is the most important aspect what I see here. Next things, what type of methodology would be there, techniques would be there for audit evidence. तो आपको तो मालूम ही है कि we are just go for the inquiries with the management to collect the audit evidence. We have inspections of the goods, assets and documents to get the audit evidence. We have external friends confirmations. We have analytical procedures. We apply after friend test of friends details. We apply additional friends for the process or assessments friends, that is friends analytical process to judge whether our conclusion is correct or not. We have a recomputation of data. We have observations on internal control system and all these things. So all these are the different methodology and techniques what we follow friends to obtaining audit evidence.
Now types of audit procedures, so in that friends risk assessment procedure, ये बहुत important चीज है जो हम 300 की सीरीज में पढ़ चुके हैं कि हमें सबसे पहले रिस्क असेसमेंट ऑडिट का करना बहुत जरूरी है. रिस्क असेसमेंट ऑन द कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ द डेटा ऑल्सो. रिस्क असेसमेंट करते हुए यदि हमें लग रहा है कि रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो हमें ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे बिफोर वी कंक्लूड द थिंग्स. और यदि हमें लग रहा है कि रिस्क फैक्टर बहुत कम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, डेटा बहुत रिलायबल है, तो उस केस में हम अपनी ऑडिट एविडेंस को रिड्यूस कर सकते हैं. नंबर 2, further friend audit procedure, that is substantive process friend, that is nothing but analytical process or टेस्ट ऑफ डिटेलिंग. सो ये दोनों जो प्रोसेस है उसमें हमें क्या चेक करना है. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर हम चेक करेंगे 3 चीज को. पहला एग्जिस्टेंस फ्रेंड्स के वो सिस्टम एग्जिस्ट है कि नहीं. नंबर 2, वेदर इट वुड बी इफेक्टिव और नॉट. एंड नंबर 3, वी नीड टू चेक वेदर प्रॉपर कंसिस्टेंसी would be there or not, so that we need to check it out in that case. So what we supposed to check in the टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स डिटेलिंग. सो टेस्ट ऑफ डिटेलिंग में हमें बहुत सारी चीज को देखना है. उसमें सबसे पहला हमें देखना है ऑथराइजेशन का. मगर ऑथराइजेशन जनरली कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर आ जाता है. उसके अलावा हमें देखना है कि एग्जिस्टेंस उसका है कि नहीं, क्योंकि जब हम वाउचर्स देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी एग्जिस्टेंस लेवल्स कि एक्चुअली वो वाउचर्स अवेलेबल है कि नहीं. We need to check the titles and the ownership. We need to check the period and date. We need to check the valuation means amount. We need to check whether it is proper coding and classification would be take place. We need to check friends proper disclosures and the entries would be take up place or not. So all these things we will check in the test of detailing. मतलब हम academic में इसको बोलते हैं voucher and verification. Method of testings जो है उसमें ये 2 चीज हमको रिव्यू करना है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल है कि टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स डिटेलिंग है और डिटेल्स है. इंटरनल एंड एक्सटर्नल एविडेंस की बात करें तो याद रहे एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन द इंटरनल एविडेंस. जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि ओरिजिनल कॉपी इज ऑलवेज फ्रेंड्स मोर रिलायबल देन द फोटो कॉपीज. Yes, the last area what here given that is nothing but surprise check. Surprise check एक ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने का बहुत अच्छा टूल्स है और जनरली ये चीज हम इन्वेंट्री और कैश बैलेंस को ये यूज करते हैं क्योंकि सरप्राइज चेक से हमें जो एविडेंस मिलते हैं दैट इज मोस्ट रिलायबल क्योंकि हमने इंटीमेट किया नहीं है और हमने वो चीज को चेक किया है. And I think we can have a more perfect information and audit evidence from that techniques. Clear? Next things is SA 501. अब 501 की बात करेंगे तो स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम. अब ये जो सिलेक्टेड आइटम है इसमें यहाँ पे 3 एरियाज पे बात की गई है. एक तो फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री मतलब फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन की बात है. Number 2 is the litigations and the claim, and third is nothing but we can say segment reporting. अब जब हम ये चीज की बात करते हैं तो एक चीज में आप क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो हमें करना है, काउंटिंग करना है, इट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. और यहाँ पे जो हम चेक करना चाहते हैं दैट इज एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन. मतलब स्टॉक का एग्जिस्टेंस होना चाहिए और उसकी कंडीशन जो बुक्स में लिखी है वो स्टेज पे होनी चाहिए. ये 2 चीज को हम वेरीफाई करते हैं. यहाँ पे वैल्यूएशन के बारे में ये ऐसे बात नहीं कर रहा है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको फिजिकल काउंटिंग करना है, मगर वो टाइम पे ऑडिटर का वहां पे अटेंडेंस होना जरूरी है. आप मुझे बोलोगे कि सर क्यों अटेंडेंस होना चाहिए? टू चेक 2 थिंग्स. फर्स्ट, मैनेजमेंट ने प्रॉपर प्रोसीजर्स लगाया है कि नहीं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए. एंड नंबर 2, जो प्रोसीजर्स मैनेजमेंट ने लगाया है उसको वो ऑपरेशनल स्टाफ प्रॉपरली फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ये चीज देखना ऑडिटर का काम है. ठीक है, अब कुछ जगह पे हमें स्टॉक वेरिफिकेशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है.
तो वहां पे हम किस तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या ऑल्टरनेट प्रोसेस लगाएंगे, कैसे लिमिटेशंस हम प्रिपेयर करेंगे, ये देखना जरूरी है। आप मुझे बोलोगे कि सर कैसे ये हो सकता है, इन प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है। अब कोई भी स्टॉक ऐसा है कि जो अंडरग्राउंड पाइप है उस पर पड़ा है, तो हम अपने आर्टिकल स्टाफ को ये नहीं बोल सकते कि आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन में जाके स्टॉक को वेरीफाई करो। नंबर 2, कोई ऐसा भी स्टॉक है जो आर्मी का है और वो बॉर्डर पे पड़ा है और वहां पे कुछ मूवमेंट चल रही है फ्रेंड्स बॉर्डर के ऊपर, इसलिए वहां जाना बहुत डेंजरसफुल है। तो इस सिचुएशन में फ्रेंड्स हम एडवाइस करेंगे कि ये स्टॉक को वेरीफाई करना प्रैक्टिकल नहीं है, तो हमें ऑल्टरनेट एविडेंस वहां से कलेक्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज हमें लिमिटेशंस पकड़नी पड़ेगी। और यहाँ पे जब ऑडिटर्स अटेंड नहीं कर पा रहे स्टॉक वेरिफिकेशन को, तो हमें उसके ऑल्टरनेट वे निकालने पड़ेंगे कि हम कब दूसरी डेट पे इसको वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद जो हमारी रिपोर्टिंग डेट होती है और हमारे जो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन की डेट है, उन दोनों डेट के बीच में जो हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उसे हमें बहुत केयरफुली रिव्यू करना पड़ेगा और उसको हमें रिकंसाइल करना पड़ेगा, हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि स्टॉक हमारा पड़ा हुआ है किसी थर्ड पार्टी के पास, तो हमें वहां से एक्सटर्नल कंफर्मेशंस लेना पड़ेगा और ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन में हम एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन दोनों को रिव्यू करेंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको लग रहा है कि वो स्टॉक मटेरियल है, तो हमें वहां पर्सनली जाके भी उसको वेरीफाई करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नंबर 2 एरियाज जो हम लोग ले रहे हैं, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन में और भी बहुत सी बात है। हम लोग देखते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन में कट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी होता है। हम एबीसी एनालिसिस को अप्लाई करके वी विल डिसाइड द सैम्पलिंग परसेंटेज, क्योंकि ये कैटेगरीज की आइटम होती है उसमें हम सैम्पलिंग परसेंटेज ज्यादा लगाते हैं, सी कैटेगरी की आइटम्स होती है उसमें हम सैम्पलिंग परसेंटेज कम लगाते हैं। तो ऑल दिस आइटम इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। और हमें फिजिकल बैलेंस को बुक बैलेंस के साथ रिव्यू भी करना है। यदि हमें कोई डेविएशन दिख रहा है, देन वी ट्राई टू टेक द करेक्टिव एक्शंस ऑन दिस पर्टिकुलर placements. Now next area is litigations and claim. ये बहुत important चीज है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हम जब ऑडिट करते हैं तो हमें वो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करके हमें पहले इंफॉर्मेशन लेनी है कि क्या क्या लिटिगेशन और क्लेम कंपनी के सामने चल रहे हैं और उसमें क्या लायबिलिटीज और कंटिंजेंट लायबिलिटी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज की है, उसमें जो हमने एस्टिमेशंस किए हैं वो एस्टिमेशंस हमने कौन सी मेथोडोलॉजी से क्रिएट किए हैं, क्योंकि यदि एस्टिमेशन हमने प्रॉपरली क्रिएट किए होंगे तो हम बोल सकते हैं कि उसका रिव्यू भी हमें करना जरूरी होगा। अब आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ लिटिगेशन क्लेम प्रॉपरली मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किए हुए हैं, तो उस केस में हमें कंपनी के लीगल काउंसिल्स के साथ कम्युनिकेशंस करना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशंस दो तरह का होता है। एक तो हम एक जनरल इंक्वायरीज डाल देते हैं एक लेटर के अंदर, और वो जनरल इंक्वायरीज में हम उनसे पूछते हैं कि क्या क्या लिटिगेशंस कंपनी के चल रहे हैं और वो लिटिगेशंस के आउटकम क्या हो सकता है, और वो जो आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक क्या मैनेजमेंट ने वो प्रोविजंस क्रिएट किया हुआ है, कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रेजेंट की हुई है। यदि हमें वहां से आंसर्स नहीं मिल रहा है तो सेकंड स्टेज ये है कि हमें लेटर लिखना पड़ेगा स्पेसिफिक इंक्वायरी के साथ। मतलब वहां पे हम बता देंगे कि मैनेजमेंट ने हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये केस चल रहे हैं, उसमें ये अमाउंट्स मैनेजमेंट ने एस्टिमेट करके रखे हैं लॉस के लिए, और ये जो अमाउंट्स मैनेजमेंट में लिखे उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, और ये जो केसेस मैनेजमेंट ने हमको प्रेजेंट किए इसके अलावा आपके दिमाग में कोई और केसेस है जो इसकी इंफॉर्मेशन आप हमें देना चाहते हैं, then you try to forward that things। और याद रहे ये जो हम लोग उनको लेटर्स लिखते हैं वो मैनेजमेंट के लेटर पेड पे होना चाहिए, एंड लेटर्स ड्राफ्ट बाय द मैनेजमेंट एंड साइन बाय द ऑडिटर, और उसका डायरेक्ट रिस्पॉन्स जो है वो ऑडिटर को मिलना चाहिए। क्यों मैनेजमेंट लेटर्स मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। जब तक मैनेजमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा तो हमें कभी भी लीगल काउंसिल आंसर्स नहीं देगा। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है जब हम ये लेटर्स लिखते हैं, तो उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए। उसके अलावा यदि हमें लगता है कि ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, देन वी डिमांड फ्रॉम द मैनेजमेंट
मीटिंग्स विद द लीगल काउंसिल, और यदि वो मीटिंग्स मैनेजमेंट डिनाई करता है देन वी ट्राई टू क्रिएट द लिमिटेशंस। अब नेक्स्ट एरिया है दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। आपको तो मालूम है कि सेगमेंट रिपोर्टिंग अंडर AS 17 हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं सेगमेंट रिपोर्ट, और अब सेगमेंट रिपोर्ट का जो मेजर बेस है दैट इज इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट ही है, कि इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट सिस्टम में जो भी हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं उसको हमें बेस बना के सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरी जॉब रहती है दैट इज टू फाइंड आउट द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। और रिपोर्टेबल सेगमेंट में आपको मालूम है 3 पैरामीटर्स है, 10% ऑफ द रेवेन्यू, 10% ऑफ द एसेट्स एंड 10% ऑफ द नेट रिजल्ट्स। और ये तीनों के बीच में और है, मतलब तीनों में से एक भी कंडीशन यदि फुलफिल हो जाएगी सो दैट सेगमेंट वुड बी क्लासिफाइड एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। और रिपोर्टेबल सेगमेंट निकालने के बाद नेक्स्ट एरिया जो रहता है वी नीड to check it out कि 75% of the total revenue will be present through reportable segments, otherwise we can add other segment which is still not reportable। तो ये सारे जो रूल्स है उसके मुताबिक हमें रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को बनाना है और उसको डिस्क्लोज करना है, प्राइमरी सेगमेंट, सेकेंडरी सेगमेंट्स के डिस्क्लोजर्स देना है। तो ये सारी चीज ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि प्रॉपर सेगमेंट रिपोर्टिंग मैनेजमेंट ने प्रेजेंट किया है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा SA 501। We are moving to the next stage, that is SA 505। Now SA 505 is connected with external confirmation। ये बहुत important audit evidence है, क्योंकि जब हम बाहर से confirmations लेते हैं तो ये बहुत strong evidence बनता है हमारे auditing के लिए। कौन से ऐसे area है जहाँ पे हम external confirmations लेते हैं? तो that is here highlights bank balances है, receivable balance है, स्टॉक लाइन विद थर्ड पार्टी है, पेएबल बैलेंस है, लोन बैलेंस है, फिक्स्ड डिपॉजिट बैलेंस है। आपको फिक्स्ड डिपॉजिट बैलेंस के बारे में तो आपको मालूम ही है, सत्यम कंप्यूटर का जो फ्रॉड हुआ था उसमें जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट थी उनका कंफर्मेशन नहीं लिया गया था और उसके कारण वहां पे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, हमें प्रॉपर एक्सटर्नल कंफर्मेशंस यूज करने ही पड़ेंगे टू कलेक्ट द राइट काइंड ऑफ ऑडिट एविडेंस। नंबर 2, हम कैसे डिजाइन करेंगे हमारी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। वन इज द पॉजिटिव रिस्पांस एंड सेकंड इज अ नेगेटिव रिस्पांस। अब पॉजिटिव रिस्पांस होता है वहां पे आंसर यस भी आ सकता है, नो, मतलब आंसर उनको देना पक्का है, मतलब आंसर वो डिनाई नहीं कर सकते, आइदर वो यस में दे या नो में दे, उसको पॉजिटिव रिस्पांस बोलते हैं। और नेगेटिव रिस्पांस में ये होता है कि यदि पॉजिटिव आंसर है तो उनको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मगर यदि नेगेटिव रिस्पांस है तब भी वो अपने को रिस्पांस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेगेटिव रिस्पांस हम ट्राई करते हैं कि अवॉइड ही करें, हमें ज्यादातर केस में पॉजिटिव कंफर्मेशन और रिस्पांस को ही यूज करना चाहिए, मगर बहुत बार नेगेटिव रिस्पांस भी हमें यूज करना पड़ता है जब डेटा बहुत लार्ज साइज में होता है। नंबर 2, हम क्रेडिटर्स से हमें कंफर्मेशंस लेना है। यदि क्रेडिटर्स से हमें कंफर्मेशंस लेना है तो सीधी सी बात है वहां से रिएक्शन पक्का आएगा कि क्या यहाँ पे बैलेंस सही है कि नहीं है। नंबर 2, होमोजेनियस आइटम्स है तो भी हम नेगेटिव कंफर्मेशन के लिए जा सकते हैं। यदि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसमें हम ब्रेकअप भी कर सकते हैं, बड़े अमाउंट के साथ जो फिगर है उसमें पॉजिटिव कंफर्मेशन ले, और छोटे छोटे जो अमाउंट है जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, मटेरियलिटी वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे हम नेगेटिव रिस्पॉन्स के साथ भी चल सकते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं टू डिजाइन फ्रेंड्स राइट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। डायरेक्ट रिस्पॉन्स ऑडिटर को ही होना चाहिए, एक्सटर्नल जो हम कंफर्मेशन ले रहे हैं उसका रिस्पॉन्स डायरेक्टली ऑडिटर को होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए। और नेक्स्ट आइटम अगेन इट इज फॉरवर्ड ऑन द मैनेजमेंट लेटर, क्योंकि तभी हमें वहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। अब कभी कभी मैनेजमेंट यहाँ पे रिफ्यूज कर देता है कि मैं आपको यहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं दूंगा, तो उस केस में हमें अपना लिमिटेशंस बनाना जरूरी है। पॉसिबल है तो हम एडिशनल प्रोसेस भी लगा सकते हैं टू डिराइव एडिशनल इंफॉर्मेशन। लास्ट एरिया है जो हमें इवेल्यूट करना पड़ेगा कि जो हमें रिस्पॉन्स मिला है एक्सटर्नल पार्टी से वो रिलायबल है कि नहीं, कौन से पर्सन ने वहां से रिस्पॉन्स किया हुआ है। मतलब यदि हमें
थर्ड पार्टी से जो कंफर्मेशन मिला है उनके क्लार्क ने कंफर्मेशन दे दिया है एंड इट इज नॉट रिस्पॉन्स बाय द प्रॉपर पर्सन, तो ये रिलायबल नहीं है और उसके पीछे हमें फिर से फॉलो अप लेना पड़ेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट हमको देखना बहुत जरूरी है। और यदि कोई डेविएशन दिख रहा है हमारे मैनेजमेंट के फिगर्स और एक्सटर्नल कंफर्मेशन में, तो हमें मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी करके वो डेविएशन को रिजल्ट करने की ट्राई करनी चाहिए। ये SA505 हो गया। नेक्स्ट इज SA520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये एक एडिशनल ऑडिट प्रोसेस है, सब्सिक्वेंट फ्रेंड्स ऑडिट प्रोसेस है, जहां पे हम टेस्ट ऑफ डिटेल के बाद एडिशनली रिव्यू करना चाहते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग डेटास है वो रिलायबल है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले इसको बोला हुआ है कि इट इज ऑल्टरनेट ऑफ TOD, मतलब टेस्ट ऑफ डिटेलिंग का ऑल्टरनेट है। आप जो वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हो उसके बाद एक बार एनालिटिकल प्रोसेस भी करना जरूरी है। ऑडिट खत्म करने के बाद हम कुछ रेशियोज कैलकुलेट कर लेते हैं टू टेक द जजमेंट कि वेदर दिस ईयर्स डेटा विल बी प्रॉपर और नॉट। और यदि रेशियो में कोई डेविएशन मिलता है तो उसका हम इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं और वो डेविएशन क्यों निकला है उसके रीजंस को भी हम आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एनालिटिकल प्रोसेस करने से पहले इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि उसके बेस पे ही हम एनालिटिकल प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ एनालिसिस कैन बी पॉसिबल। तो कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजंस, मतलब हम किसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। करंट ईयर का जो एनालिटिकल प्रोसेस हमने निकाला है दैट वी विल कंपेयर विद द लास्ट ईयर, और वेदर वी कंपेयर विद द एंटिसिपेटेड फिगर्स ऑफ द मैनेजमेंट, वेदर वी कंपेयर विद द auditor's expectation, or whether we compare with the similar industries data or average of the industry data। तो ये हमें comparisons consideration create करना जरूरी है। दूसरा consideration of relationship, हम कौन सा डेटा कौन से डेटा के साथ कंपेयर करेंगे। There is a possibility that financial data compare with the finance, that is we can take the example of GP ratio, net profit ratio, return on capital employed, etc. Non-financial information compare with non-financial information, we can say it is yield ratio. In that case, input and output we are supposed to compare. And sometimes financial data compare with the non-financial data. There we talk about, friends, cost of employees per employees, right? So it's very clear, one side financial data, second side non-financial data. When we use this type of analytical process, right, so when data would be large data, repetitive and homogeneous nature, and it is accounting data, ये बहुत important चीज है। Analytical process हम business के लिए भी use करते हैं, और अगर यहाँ पे जो बात की गई है ये ऐसे के अंदर, that is for the accounting data, where good, friends, a control system is exist, analytical data we can apply, friends। यदि good control system नहीं है तो वो data ही reliable नहीं है, तो उसके ऊपर फिर analytical process लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। The last thing, using analytical process is a substantive audit process and forming the opinion। क्या हम exact steps को follow करेंगे यहाँ पे, तो completeness and suitability हमें check करनी है, relationship को identify करना है। Number 2, we evaluate the reliability of the data। यदि data reliable नहीं तो फिर analytical process डालने का कोई मतलब नहीं। Develop the expectation and range। देखो, expectation हमारे बना के रखना तो जरूरी है, मगर एक range भी बनाना जरूरी है, क्योंकि exact आंसर मैच होगा ये जरूरी नहीं है, थोड़ा range भी बनाना है। यदि वो range के अंदर आंसर पड़ता है analytical process का, then we will take it as a okay, ठीक है, and determine and find out the differences whatever coming up, and we investigate into results। So that is nothing but we can say analytical process what we are using, friends, for the purpose of collecting audit evidence। Clear? Now next is SF530, बहुत interesting ऐसे है sampling का, audit sampling। हम CA एग्जाम में बोलते थे कि sampling is always gambling, मगर ऑडिटिंग के लिए आपको मालूम है कि सैम्पलिंग का यूज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो ऑडिटिंग कभी कंप्लीट नहीं होगा। और सैम्पलिंग का एक रूल्स है कि हम पर्टिकुलर सैंपल्स पे वेरिफिकेशन करते हैं, फिर हमें ओपिनियन जो क्रिएट करना है वो टोटल
पॉपुलेशन पे करना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सैम्पलिंग यूज किया हुआ है तो जो भी चीज हमने चेक की है उसके ऊपर हमें ऑडिट रिपोर्ट बनाना, नहीं नहीं नहीं, ऑडिट रिपोर्ट हमें पूरे पॉपुलेशन के लिए देना है। मगर हाँ, वो कंक्लूजन्स बनाने के लिए हम सैम्पलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। There are two types of risks in the auditing process. One is sampling risks and second is non-sampling risks. मतलब सैम्पलिंग लगाया और उसके कारण वो रिस्क फैक्टर निकला तो उसको सैम्पलिंग रिस्क बोलते हैं। और नॉन सैम्पलिंग रिस्क मतलब हमने पूरा का पूरा डेटा रिव्यू किया, कोई भी सैम्पलिंग नहीं लगाया तो भी कहीं पे हमारी गलती हो रही है, मिस्टेक्स हो रही है, ह्यूमन एरर्स हो रही है, दैट इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क। तो ये जो ऐसे बात कर रहा है वो ऐसे का बेसिक ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द सैम्पलिंग रिस्क है। यहाँ पे नॉन सैम्पलिंग रिस्क के बारे में कुछ भी बात नहीं की जा रही है, ठीक है। नंबर 2, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दिया है वो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का बात होता है कि we try to select the sample randomly, and number 2, after selecting results from the sampling we apply to proper probabilities to get the exact results for the populations। तो ये दोनों फैक्टर को हम साथ में यूज करें, मतलब random selections and number 2 probability, and that sampling process would be called statistical sampling, and this is most appropriate sampling techniques what we are using to collecting audit evidence, ठीक है। What is requirement of the sampling process? तो sampling process के बारे में मैं बता दूं कि सबसे पहले हमें प्रॉपर पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। मतलब हमारे पास जो ऑडिट डिटेल्स होगी वो सारे ऑडिट डिटेल्स में रिस्क फैक्टर सेम नहीं रहेगा, नेचर ऑफ जो इंफॉर्मेशन होगी वो डिफरेंट होगी, तो हम उसके ऊपर सिंगल सैम्पलिंग स्टेप्स अप्लाई नहीं कर सकते। वी नीड टू सेग्रीगेट ऑल द populations according to their friends, nature of information, nature of friends data, and this is called grouping of the friends populations। एक बार ग्रुपिंग अप्लाई करके फिर हम रिस्क असेसमेंट करेंगे इंडिविजुअल पॉपुलेशन का, और उसके बेस पे फिर हम अप्लाई करेंगे सैम्पलिंग साइज हमको क्या सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे दो तरह के सैम्पलिंग रिस्क हो सकते हैं जो मैं आपको इलोबरेट करना चाहता हूँ। पहला जो सैम्पलिंग रिस्क है दैट इज मोरली कनेक्टेड विद TOD, मतलब टेस्ट ऑफ डिटेलिंग के साथ कनेक्टेड है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल को भी हम कह सकते हैं। दैट इज ओवर रिलायंस। ओवर रिलायंस मतलब हमने सैम्पलिंग प्रोसेस पे ज्यादा रिलायंस कर लिया जितना नहीं करना था, और उसके कारण रॉन्ग ओपिनियन क्रिएट हो सकता है, और ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। अब अंडर रिलायंस का मैटर है, मतलब हमने जो रिलाई करना चाहिए उससे कम रिलाई किया, तो हमने चेकिंग ज्यादा किया, उसमें रॉन्ग रिपोर्ट्स का रिस्क नहीं है मगर वहां पे टाइम ज्यादा स्पेंड हो जाएगा, एफिशिएंसी एडवर्सली इम्पैक्ट करेगी, और अल्टीमेटली दैट विल इम्पैक्ट टू द आउटकम ऑफ द ओपिनियंस। उसी तरह से हम दूसरा रिस्क देखें तो रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, मतलब हमें जिसको एक्सेप्ट नहीं करना था वो हमने एक्सेप्ट कर लिया एज ए करेक्ट, तो उसके कारण वहां पे हमारा रॉन्ग ओपिनियन क्रिएट हो सकता है। और रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन, हमें जिसको रिजेक्ट नहीं करना था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और वहां पे एफिशिएंसी एडवर्सली इम्पैक्ट होगी। तो ये दो तरह के रिस्क को हमें जरा माइंड में रखना है। अब हम बात करते हैं कि कौन से मेथड से हम लोग सैंपल सिलेक्शंस करेंगे। तो उसमें एक मेथड तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दी कि वी कैन गो विद रैंडम सिलेक्शन जो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का पार्ट है, देन आफ्टर वी कैन गो फॉर एडहॉक सिलेक्शंस, देन आफ्टर फ्रेंड सिस्टमेटिक सिलेक्शन, मतलब स्पेसिफिक नंबर को हम सिलेक्ट करते जाए वाउचर्स की। उसके बाद ब्लॉक सिलेक्शन, मतलब पर्टिकुलर ब्लॉक को सिलेक्ट करें, बाद में हम कुछ ब्लॉक को छोड़ दें, बाद में एक ब्लॉक को हम सिलेक्ट करें, तो उस तरह से हम जा सकते हैं। वी कैन क्रिएट फ्रेंड मॉनिटरी यूनिट्स ऑल्सो, कि जहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल के हम हाई वैल्यू पे अलग सैंपलिंग लगाए, लो वैल्यू पे कम सैंपलिंग लगाए, तो उस तरह से हम ABC एनालिसिस को यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन डिसाइड द सैंपलिंग परसेंटेज। हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जो सैंपलिंग का रिजल्ट्स आता है उसको हमें प्रॉपरली इवेल्यूएट करना चाहिए, और यदि हम जब सैंपलिंग अप्लाई करते, ऑडिट प्रोसीजर लगाते, तब कुछ डेटा हमें मिसिंग मिलता है,
तो वो मिसिंग डेटा का हमें रिप्लेसमेंट मैनेजमेंट से लेना जरूरी है। और यदि हमें मिसिंग डेटा का रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है तो फिर हमें लिमिटेशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। यदि कोई मिस स्टेटमेंट और डेविएशन हमें मिलता है तो दैट वी नीड टू वेरीफाई विद द मैनेजमेंट, वी इंक्वायर विद द मैनेजमेंट कि why this misstatement and deviation would be coming out, and we might try to resolve through applying friends additional audit processes. प्रोजेक्टिंग फ्रेंड्स मिस स्टेटमेंट मतलब ऑब्वियसली जो मिस स्टेटमेंट आया उसके बेस पे हमें एक प्रोजेक्शन करना पड़ेगा कि उसकी पॉपुलेशन पे ओवरऑल इफेक्ट क्या होगी, और लास्ट में हमें इवेल्यूएट करना होगा कि सैंपलिंग का रिजल्ट्स क्या आया। तो ये पूरी जो प्रोसेस है उसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि सैंपलिंग का सबसे बड़ा रिस्क यही रहता है कि हम रॉन्ग ओपिनियन क्रिएट कर दें, और ये रॉन्ग ओपिनियन क्रिएट नहीं हो इसलिए हम सैंपलिंग रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं। और ये जो ऐसे है दैट गिव्स अस प्रॉपर गाइडलाइन to use friends systematic way of a sampling process, and that will help us to reduce the sampling risks what we are friends having for creating audit evidence. Clear? The next things that is friends SF540, that is nothing but estimation। और अब आपको तो मालूम है कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो ईयर एंड के अंदर हमें बहुत सारी चीज के लिए एस्टिमेशंस क्रिएट करने पड़ते हैं, और ये जो एस्टिमेशन हम क्रिएट करते हैं उसका हमें रिस्क असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मैक्सिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग जो होता है, क्रिएटिव अकाउंटिंग होता है, वो ये एस्टिमेशन के रूट के थ्रू ही होता है। तो हमें ये रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि कौन से एस्टिमेशन हमने क्रिएट किए हुए हैं, और वो जो एस्टिमेशन हमने क्रिएट किए हैं उसमें कौन से मेथोडोलॉजी को यूज किया है, हमने कौन से एक्सपर्ट के ओपिनियंस लिए हुए हैं, ये सारे इंफॉर्मेशंस लेना बहुत जरूरी है। कौन से एग्जाम्पल्स है एस्टिमेशन के, तो यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट्स किया हुआ है कि डेप्रिसिएशन मेथड है, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स है, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट है, प्रोविजंस क्रिएट फॉर वारंटी कॉस्ट है। तो ये सारे एस्टिमेशन है। इवन इम्पेयरमेंट लॉस के अंदर हम फ्यूचर बेनिफिट आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हैं, तो दैट इज नथिंग बट इट इज एस्टिमेशन ओनली। नाउ how we will check this estimation whether it is proper or not, how to do the risk assessment process for the estimation। तो सीधी सी बात है, हमें मैनेजमेंट को पहले तो पूछना है कि आपने लास्ट ईयर के अंदर क्या क्या एस्टिमेशन किया था, और वो जो लास्ट ईयर में एस्टिमेशंस किया था उसका करंट ईयर में क्या आउटकम आया हुआ है। यदि आपको बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं लग रहा है तो आपको ये चीज का एश्योरेंस मिल जाएगा कि मैनेजमेंट जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहा है फॉर क्रिएटिंग एस्टिमेशन दैट इज रिलायबल, उस पे मतलब हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो हमें पास्ट हिस्ट्री चेक करना बहुत जरूरी है, उससे हमें एक जजमेंट तो आ ही जाता है रिस्क असेसमेंट का कि उनकी जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वेदर इट वुड बी सिस्टमैटिक और नॉट। अब इसमें शॉर्ट टर्म एस्टिमेशन भी होते हैं, लॉन्ग टर्म एस्टिमेशन भी होते हैं। शॉर्ट टर्म एस्टिमेशन में तो जो सब्सिक्वेंट इवेंट हो रहा है नेक्स्ट पीरियड में उसको हम चेक करेंगे तो उसे इमीडिएटली हमें जजमेंट मिल जाएंगे। अब कुछ एस्टिमेशन हम मैन्युअली क्रिएट करते हैं और कुछ एस्टिमेशन हमारे सिस्टम क्रिएट करती है, क्योंकि हमारे पास अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एसएपी है, एंड दैट इटसेल्फ इज क्रिएटिंग द फ्रेंड्स एस्टिमेशन। तो वहाँ पे बहुत सारे एश्योरेंस हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है थ्रू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हम कौन सी चेक मेथड यूज करते हैं, हम क्या जजमेंट हम यूज करते हैं टू करेक्ट द एस्टिमेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक चीज बोली है कि सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, मतलब हमें कहीं पे भी अपने प्रोसेस के अंदर ऐसा लगता है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी इन दिस एरिया, तो वहां पे हमें रिव्यू करना जरूरी है कि प्रॉपर एस्टिमेशन हमने किया है कि नहीं, और यहाँ पे एडिशनल प्रोसेस हमको यूज करना जरूरी है। जैसे हमने अभी एग्जांपल आपको दिया है इम्पेयरमेंट लॉस, तो इम्पेयरमेंट लॉस में क्या होता है कि हम एसेट्स के फ्यूचर बेनिफिट को एक एस्टिमेट करते हैं, तो हमें वहाँ पे मैनेजमेंट को पूछना पड़ेगा कि आपने फ्यूचर बेनिफिट किस तरह से डिराइव किया है, कौन से एक्सपर्ट का आपने वहाँ पे यूटिलिटी लिया हुआ है, ओपिनियंस लिया हुआ है, दैट वी नीड टू चेक इट आउट।
तो वहाँ पे हमें एडिशनल प्रोसेस लगाने पड़ेंगे क्योंकि सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी वहाँ पे बन सकती है। ये स्पेशल केस है तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है, तो वी ट्राई टू रिड्यूस दैट रिस्क फैक्टर बाय अप्लाइंग प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो दिस इज व्हाट वी आर having friends SA 540 for accounting estimations. Next thing is a very interesting friends essay, that is essay 550 for related party. अब ये related party का जो particular essay है, that is not first time we seen in the auditing. हम बहुत जगह पे टैक्स ऑडिट में कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट में देखते हैं कि हमें रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना है। अब क्यों करना है, इसके पीछे भी एक रीजन है कि बहुत सारे बुक्स में जो मैनिपुलेशंस होते हैं दैट इज थ्रू रिलेटेड पार्टीज फ्रेंड्स ट्रांजैक्शंस, तो ये नहीं हो, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी का जो डेफिनेशन है उसमें ये इंडिकेट किया गया है कि वन पर्टिकुलर एंटरप्राइज हैविंग कंट्रोल or significant influence on another enterprise, then we can say that particular enterprise have been considered as a related party. And if it is individual person, then relatives of that is also covered under related party. अब जो इंडेस में डेफिनेशन है उसमें थोड़ा एक्सटेंडेड डेफिनेशन है, उसमें रिलेशनशिप का डेफिनेशन भी एक्सटेंड किया हुआ है। दूसरी चीज यहाँ पे मैंने कंट्रोल का बात किया, सो फॉर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी बिकम्स रिलेटेड पार्टी, फॉर सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग बिकम्स फ्रेंड्स रिलेटेड पार्टी। even key managerial persons and relatives of the key managerial person is also covered under related party friends. Yes, simply because of common directors, two company not becomes related party. Public utility companies is not get a related party as a part of their normal duties of business. Same way, finance provider is not a related party as a part of their normal business activities. So all these things, what we will see that gives us ideas regarding what is a related party. और ES 18 में और इंडेक्स के अंदर जो रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशंस दिया है उसको हमें रिव्यू करके उसके कनेक्टेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसको चेक करना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये क्यों हमें डिस्क्लोज करना है, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, हम लोग फुल डिस्क्लोजर के कन्वेंशन के साथ चलते हैं, तो जो भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम दे सके टू क्रिएट द बेटर अंडरस्टैंडिंग to the user of the finance statement, that is duty of the management and auditors. Now we need to check it out कि कौन कौन से फ्रेंड्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। तो आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि सर क्या हम ये चीज ढूंढ सकते हैं, एज सच बहुत डिफिकल्ट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है कि हमें उनको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन देनी है, हमें वो भी देखना है कि हमें कौन कौन से सोर्स से उसको डिराइव कर पाएंगे। मगर हाँ, हमें यहाँ पे चेक रखना बहुत जरूरी है, हम ब्लाइंडली मैनेजमेंट पे यहाँ पे रिलाई नहीं रह सकते whatever information is given. So we keep ourselves alert on the unusual transaction whenever we see. Second thing, जो हमारे पास information आती है उसको हमें हमारी टीम के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है to create the proper environment to catch the related parties transactions. ठीक है, अब क्या क्या सोर्स है जहां से हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को कैच कर सकते हैं। तो एक तो हम शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हैं कि किस किस लोगों का हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। वी विल चेक द इन्वेस्टमेंट आल्सो कि हमने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इवन वी चेक द मिनट्स बुक्स ऑफ द फ्रेंड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और AGM and we can see कि which person having the voting rights in a particular resolution. On that basis we can identify the participating rights and we can judge related parties transaction. Even relatives को हमें देखना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से relatives कनेक्ट होते हैं, उसके बेस पे हम रिसोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मगर हाँ, ये सारे प्रोसेस, ये सारे सोर्स को हमें अप्लाई करने के बाद भी हम पूरा का पूरा डेटा अपने पास ला पाएंगे, इसका कोई एश्योरेंस नहीं है। दूसरी चीज, हमें जब भी कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मिलता है हमें उसका ऑथराइजेशन चेक करना बहुत जरूरी है कि इसको कौन सी अथॉरिटी फ्रेंड्स प्रमोट मतलब अप्रूव कर रही है। समझ लीजिए कि एक से ज्यादा डायरेक्टर उसको अप्रूव कर रहे हैं या फिर उसको अप्रूव के लिए ऑडिट कमेटी के पास भेजा हुआ है। यदि ऑडिट कमेटी के परव्यू में नहीं आता है तो वो फिर मेंबर्स को
अप्रूव करने के लिए भेजेंगे। तो ये सारे ऑथराइजेशन स्टेज हमको देखना बहुत जरूरी है। यदि हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स है तो हमें प्रॉपर इंक्वायरी सेटअप करके मैनेजमेंट से डेटा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ऑडिटर्स प्रोसीजर फॉर रिलेटेड पार्टी तो हमने देख लिया, मगर रिस्पॉन्स हम क्या देंगे, ये दो सिचुएशन है। कभी कभी क्या होता है कि मैनेजमेंट ने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है रिलेटेड पार्टी की, और बाद में हमने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर वो केस में हम क्या रिएक्शन देंगे। तो सीधी बात है, हमें मैनेजमेंट से वो पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी का डेटा हमें मांगना है और उसको हमें फर्दर ऑडिट प्रोसेस लगा के रिव्यू करना है। जब कभी भी हमें कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन मिलता है तो वहां पे भी हमें एक बार रिव्यू करना जरूरी है कि ये अनयूजुअल ट्रांजेक्शन में कोई रिलेटेड पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं है, कोई प्रॉफिट डाइवर्जन तो नहीं हुआ है। क्योंकि इंडिया में जो रिलेटेड पार्टी हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें हम लीगल फॉर्म को चेक करते हैं, नॉट सब्सटेंस। अब क्योंकि लीगल फॉर्म को हम चेक करते हैं, हम फर्स्ट लेवल पे रिव्यू करते हैं कि कौन रिलेटेड पार्टी है कि नहीं, मगर उसके बाद सेकंड लेवल पे उसका फाइनल बेनिफिशियरी रिलेटेड पार्टी है वो हम चेक नहीं करते। और यहाँ पे हमारा लिमिटेशन है, वी विल नॉट बिलीव इन द सब्सटेंस बट वी बिलीव इन द लीगल फॉर्म। जब इंटरनेशनल एंटिटी बोलती है कि आपको रिव्यू करना चाहिए सब्सटेंस को, क्योंकि जो बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं उसमें 6-7 लाइन आगे जाने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है कि अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक एग्जांपल आपको शेयर करना चाहूंगा कि कभी कभी एज ए ऑडिटर हमारी भी कुछ लिमिटेशन बन जाती है। समझ लीजिए कि एक डायरेक्टर्स की वाइफ है, उन्होंने एक पेंटिंग कंपनी को बेचा हुआ है 10 लाख रुपीस में। अब एक छोटा सा पेंटिंग है, उसको 10 लाख रुपए में परचेज। लोग तो समझ रहे हैं कि भाई हम पेंटिंग के कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, हम आर्ट के कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो 10 लाख का पेंटिंग था कि नहीं। तो उस केस में हमें देखना है कि प्रॉपर ऑथराइजेशन हुआ था कि नहीं। अब यदि वहाँ पे कमेटी को अप्रूव करना था तो ठीक है, यदि वहाँ पे कमेटी को भी अप्रूव करने से नहीं चलेगा और उसमें एजीएम में मेंबर्स ने रिजोल्यूशन पास करके उसको अप्रूव किया हुआ है, तो उसके बाद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि मेंबर्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई और मेंबर ने खुद ने उसको अप्रूव किया हुआ है। तो दिस इज अ वे व्हाट वी आर अप्रोचिंग फ्रेंड्स अनयूजुअल ट्रांजैक्शन अंडर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्लियर? The next things that is 560 subsequent event जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, that is events occurring after balance sheet date, इसके साथ ये चीज हमारी कनेक्टेड है। आपको तो मालूम ही है कि AS4 में इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में हम एडजस्टेबल इवेंट भी देखते हैं और नॉन एडजस्टेबल इवेंट भी देखते हैं। जो एडजस्टेबल इवेंट है उसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना है, बिकॉज इट इज इफेक्ट टू द कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। और नॉन एडजस्टेबल इवेंट है तो हमें जस्ट डिस्क्लोजर देना है, नोट्स टू अकाउंट्स देना है। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने जो रखा हुआ है उसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनती है वो उन्होंने इंडिकेशंस किया हुआ है। मैंने 5 स्टेज आपके सामने रखे हुए। पहला स्टेज है बैलेंस शीट डेट कंक्लूजन्स। नेक्स्ट इज अप्रूव्ड बाय द फ्रेंड्स बोर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आइटम फ्रेंड्स डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, मतलब हमने ऑडिट रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दिया। देन आफ्टर इश्यू ऑफ सर्कुलर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ऑडिट रिपोर्ट, उसको सर्कुलेट कर दिया मेंबर के बीच में। एंड लास्ट में फ्रेंड्स एडॉप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एजीएम। अब क्वेश्चन ये है कि कब तक ऑडिटर चेक करता रहेगा कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, वो एजीएम में जब तक एडॉप्ट नहीं होगा तब तक तो वो चेक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्लियर कट गाइडलाइंस दिया हुआ है ऐसे 560 के अंदर, जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनता है तब तक ऑडिटर को चेक करना है, रिव्यू करना है हर डिटेल को, और उनके सामने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करती है तो उसको हमें वहां पे इफेक्ट दे देनी है। मगर हाँ, एक बार ऑडिट रिपोर्ट हो जाता है उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन ऑडिटर के सामने आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच मटेरियल, तो उस केस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते, मगर उस केस में हम ट्राई करते हैं कि कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट करें, क्योंकि अब चेक करना तो पॉसिबल नहीं तो ऑडिट खत्म ही नहीं होगा। अब ये रिस्पॉन्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। पहली चीज, यदि कोई मटेरियल चीज हमारे सामने आती है तो हम मैनेजमेंट को ट्राई करेंगे कि वो उसको अमेंड करे।
अपने फाइनेंस स्टेटमेंट को और जितना अमेंडमेंट किया है उसके ऊपर ड्यूल डेटिंग कर दे, मतलब हमारे पुराने रिपोर्ट का एक डेट रहता है और अमेंडमेंट्स जो है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद दूसरा डेट का एक रिपोर्ट बना दे, जिसको ड्यूल डेटिंग बोलते हैं। अगर उसमें जस्ट अमेंडमेंट वाला पार्ट ही होगा, मतलब सारी इंफॉर्मेशन हमने चेक नहीं की होती है। नंबर 2, हम मॉडिफाई रिपोर्ट्स दे दे और क्वालिफाइड रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं बाय टेकिंग द लीगल ओपिनियंस। और यदि मैनेजमेंट एग्री हो जाता है एंड दे प्रिपेयर द रिवाइज फाइनेंस स्टेटमेंट, then we withdraw the old report and we try to give friends new report in this case. So this is all what there for SFI 60 under subsequent events. SFI 70 is connected with going concern and what is auditor responsibility for that. आपको तो मालूम ही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर मैनेजमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना है विद फंडामेंटल assumption of going concerns. अब ये जो going concern का assumption है उसको सेकंड लेवल पे ऑडिटर को भी रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट ने तो बोल दिया है कि इट इज गोइंग कंसर्न, मगर यदि ऑडिटर को लग रहा है कि नो 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 वी फाइंड अ लॉट ऑफ एविडेंस हियर व्हिच गिव्स अस मैटर कि इट इज अ नॉन गोइंग कंसर्न, मींस वी फाइंड आउट मेनी मटेरियल अनसर्टेनिटी, एमयू बोलते हैं हम लोग उसको, तो हमें फर्दर प्रोसेस लगा के चेक करना है कि वेदर रियली गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट और नॉट। यदि हमें लग रहा है कि गोइंग कंसर्न डज नॉट एग्जिस्ट, देन वी नीड टू आस्क द मैनेजमेंट कि आप फिर से एक बार टेस्ट लगाए गोइंग कंसर्न्स के सारे, कैश फ्लो की रिव्यू करें, उसके बेस पे आप अपने जजमेंट दीजिए कि कैसे ये गोइंग कंसर्न आपने जज किया हुआ है। और उसमें एक राइटिंग प्रेजेंटेशन उनसे लेना बहुत जरूरी है कि what type of actions and steps we will take to mitigate this situation. यदि जो सिचुएशन मैनेजमेंट हमें दे रहा है, डिस्क्लोजर्स दे रहा है और प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसके बाद यदि हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं देन वी कैन मूव फर्दर। मगर यदि हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो हमें रिपोर्ट को क्वालिफाइड भी कर सकते हैं और हम रिपोर्ट को मॉडिफाई करके एडवर्स रिपोर्ट्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो डिपेंड्स फ्रेंड्स कि किस तरह से मैनेजमेंट हमें सपोर्ट करता है टू मिटिगेट द फ्रेंड्स नॉन गोइंग कंसर्न सिचुएशंस, और वो हमें कितना जस्टिफाई करती है, कितना हमें सेटिस्फाइड करती है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल रन। या कभी कभी मैनेजमेंट फ्रेंड्स कुछ डेटा और स्टेप्स लेने से रिफ्यूजल कर देती है, तो उस केस में हमें लिमिटेशंस बना देना जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। कभी कभी हम लोग जजमेंट लेते हैं कि गोइंग कंसर्न ही है बिजनेस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर नॉन गोइंग कंसर्न है एंड बुक्स ऑफ अकाउंट इज आल्सो प्रिपेयर्ड एज पर नॉन गोइंग कंसर्न, देन आई थिंक ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी देयर रिमेंस ओनली टू डिस्क्लोज द फैक्ट। मगर यदि नॉन गोइंग कंसर्न है और अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एज पर गोइंग कंसर्न, then principally accounts not prepared correctly, and at that time adverse reports or opinion becomes very important. Now the next things what we need to review, that is audit report. Now हम लोग 700 की सीरीज में आ गए हैं, यहाँ पे 2-3 ऐसे का ही हम लोग रिव्यू करेंगे क्योंकि ज्यादा डिटेलिंग के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अब ऑडिट रिपोर्ट, कंक्लूजन्स और ओपिनियन अभी हमें फॉर्म करना है, और जब हम ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करते हैं उस टाइम पे हमें क्या क्या चीज को ध्यान में रखना है। तो हमें ये देखना है कि जो फाइनेंस स्टेटमेंट हमारे सामने आए हैं that will use proper terms and which is understandable to the stakeholder or not, whether proper framework and format we are using for preparing the accounts, whether proper accounting policy we will use for the preparing accounting, whether proper estimation we are doing, whether fair presentation would be done or not, true and fair opinion would be coming out or not, all the compliance requirement would be fulfilled or not. All these things we need to check it out before we create our opinion. Generally, whatever opinion we are giving in that as per format concerns or format spreads, always we give true and fair view on the finance statement. और finance statement में क्या क्या cover हो रहा है वो भी हमें लिखना जरूरी है कि this fair, true and fair view connected in the case of P&L, in the case of balance sheet, in the case of cash flow. यदि हमें लगता है कि कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी फिनेंस स्टेटमेंट में दी हुई है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एक्सेट्रा, जिसको हमने चेक नहीं किया है, तो वो भी हमें स्पेसिफाइड कर देना है कि दिस थिंग्स इज अनऑडिटेड एंड वी आर नॉट रिव्यू।
because it is not compulsory for us to review. अब क्वेश्चन ये रहता है कि जो भी लॉ और रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है उसको हमें ऑडिट रिपोर्ट में प्रेस्क्राइब करना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट्स बनता है और ऑडिट जो स्कोप बनता है दैट डिफाइन ऑन द लीगल रिक्वायरमेंट एंड लीगल फॉर्मेट्स, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब ऑडिट रिपोर्ट का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होगा? सो सीधी सी बात है, ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होगा उसमें सबसे पहले हमें हेडिंग्स देना पड़ेगा कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट्स। Number two, we need to give the name of the entities. For that, we will do the auditing. Number three, which period of financial statement would be covered under these audit reports. Number three, friends, appointment authority कौन है ये particular audit reports के scope define करने के लिए, और ये report हमें किसको forward करना है, whether members है, management है, किसको। Next items, हमें देखना है कौन से types of financial statement को हमने cover किया हुआ है, कौन सी चीज को cover नहीं किया है। What is management responsibility? What is auditor's responsibility? और ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें ये लिखना बहुत जरूरी है कि ऑडिट टेक प्लेस एज पर एसे। नेक्स्ट आइटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओपिनियन पैरा हमें लिखना है। ओपिनियन पैरा के बाद हम स्पेशल एम्फेसाइज पैरा लिखेंगे और लास्ट में अदर इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। उसमें हमें ट्रू एंड फेयर व्यू को इंडिकेट भी करना है ओपिनियन पैरा के अंदर, और लास्ट में हम सिग्नेचर्स डालेंगे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो ये जनरल फॉर्मेट्स हमारा बनता है जब हम ऑडिट रिपोर्ट को फॉर्मेट करते हैं। ऐसे 700 के लिए हमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है। इसके अलावा जो दूसरा ओपिनियन है वो मॉडिफाइड ओपिनियन है, दैट वी विल कवर अंडर 705। अब कभी कभी हम जब ऑडिटिंग करते हैं तो हमारा जो लीगल फॉर्मेट्स होता है ऑडिटिंग का, दैट इज नॉट गिव द एग्जैक्ट कंपेरेबल एस्पेक्ट फॉर द एसे, तो हम एसे को वहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ पे हमें ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑडिट बेस्ड ऑन एसे लिखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम ऑडिट रिपोर्ट जो प्रिपेयर करते हैं और ऑडिटिंग प्रोसेस हम करते हैं उसमें इंटरनेशनल एसे एंड नेशनल एसे दोनों आ जाते हैं। अभी दोनों चीज पैरेलल है मगर पहले दोनों चीज में डिफरेंसेस भी था। तो यदि हम दोनों एसे को फॉलो करके हमने ऑडिट टेक प्लेस किया हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा दोनों का ओपिनियन सेम आ रहा है तो कॉमन रिपोर्ट बना सकते हैं, ओपिनियन डिफरेंट आ रहा है तो हम डिफरेंट रिपोर्ट्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब द नेक्स्ट मैटर वी नीड टू लर्न दैट इज फ्रेंड्स SS705 कनेक्टेड विद फ्रेंड्स मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। आपको तो मालूम ही है जब हम ओपिनियन की बात करें तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ ओपिनियन, वन इज unmodified opinion and second is modified opinion। 700 में हमने unmodified opinion तो देख लिया, अब हमें यहाँ पे modified opinion देखना है। अब modified opinions में हमें ये देखना जरूरी है कि there is a misstatement in the audit process we find out or whether it is a limitation, and according to that we will create the friends modified opinion। Modified opinion can be qualified opinion, can be an adverse opinion and can be a disclaimer opinion। अब किस तरह से हमें ऑडिट रिपोर्ट में ड्राफ्ट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जब हमको लगता है कि जो भी सिचुएशन हमारे सामने है उसमें परसेस वैल्यू है फ्रेंड्स कंप्लीटली फेयर एंड ट्रू व्यू फॉल्ट हो रहा है, प्रिंसिपली अकाउंट्स गलत है, तो हम एडवर्स रिपोर्ट्स दे सकते हैं। यदि हमें लग रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन हम चेक नहीं कर पाए और वहां पे हमें ओपिनियन देना डिफिकल्ट है तो हम डिस्क्लोजर क्लियर कर सकते हैं। और यदि ट्रू एंड फेयर व्यू कुछ एक्सेप्शन के साथ बन रहा है देन वी विल क्रिएट द क्वालिफाइड रिपोर्ट। पहले मिस स्टेटमेंट की बात करेंगे। मिस स्टेटमेंट यदि फुल्ली एडवर्स सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बना रहे तो एडवर्स ओपिनियन दे दे। पार्शियली एस्पेक्ट बन रहा है मिस स्टेटमेंट के अंदर, कुछ एरिया में प्रॉब्लम्स है तो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दे, और हमारी एबिलिटी नहीं थी एविडेंस कलेक्ट करने की तो हम डिस्क्लेमर्स दे देते। लिमिटेशन के बारे में वी आर नॉट एबल टू चेक। अब लिमिटेशन किस तरह से क्रिएट होती है ये भी हमें देखना जरूरी है। अवर ऑन लिमिटर्स मतलब ऑडिटर्स खुद की लिमिटेशन के कारण चेक नहीं कर पाए तो दैट इज वन एस्पेक्ट। नंबर टू, लिमिटेशन इज क्रिएटेड बाय द लॉ एंड अथॉरिटीज। अब कोई इनकम टैक्स ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स और कुछ एविडेंस को सीज कर दिया है, उसके कारण हम चेक नहीं कर पाए। So this is limitation created by the friends auditors, sorry law, and the limitation is created by the management। मतलब मैनेजमेंट के पास डेटा होने के बावजूद भी वो देना नहीं चाहते, उस केस में तो बहुत क्लियर कट मैटर है कि हमें
ऑडिट से विड्रॉल ही करना पड़े, और यदि लग रहा है कि ऑडिट विड्रॉल करने में लीगल कॉन्सिक्वेंस बन सकते हैं, तो वी कैन टेक द ओपिनियन ऑफ द लीगल पीपल्स, एंड even it is not possible to withdraw, then we can create friends qualified reports or limitations reports. But it's very clear, if you find because of your limitations what you have, if complete outcome would be friends not it is having adverse perceived value friends, then we will create friends disclaimers. And if you find that there is limited problems friends because of this limitation, बाकी सब चीज true and fair है, then we can create qualified reports with limitations. तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मेट हो गया कि how we will create modify opinions for our audit reports. अब S720 रिवाइज जो है, that is auditor responsibility relating to the other information. अब जब other information की हम बात करते हैं तो इमीडिएटली हमारे माइंड्स में आ जाता है दैट इज डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स. मुझे याद है जब मैं सीए कर रहा था बॉम्बे से, तो हमारे एक वेल नोन स्पीकर रहते थे बॉम्बे में, दैट इज नारायण वर्मा. उनके एक सेमिनार में एक बार क्वेश्चन किया गया था कि वेदर ऑडिटर्स कैन प्रिपेयर डायरेक्टर रिपोर्ट. तो वो बहुत सरप्राइज हो गए थे वो क्वेश्चन के साथ. उन्होंने फिर आंसर्स जो दिया था वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि ऑडिटर्स कांट प्रिपेयर फ्रेंड्स director reports, but it is always prepared by auditors because our director don't know how to prepare director reports. तो ये फैक्ट हमें मालूम है जो हम प्रैक्टिस में एवरीडे फॉलो करते हैं कि जनरली हमें डायरेक्टर रिपोर्ट्स बनाना पड़ता है. मगर हाँ, कभी डायरेक्टर खुद डायरेक्टर रिपोर्ट्स बना रहे हैं तो हमें ऑडिट रिपोर्ट्स का कंक्लूजन्स देने से पहले उनसे डायरेक्टर रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके उसका रिव्यू करना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि there is a possibility of material inconsistency, और यदि material inconsistency है तो वो material inconsistency गलत मैसेज दे सकती है स्टेक होल्डर को. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. हमने एक इन्वेस्टमेंट को जब ऑडिट किया तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिडर करके वो सब्सिडरी कंपनी को हमने कंसोलिडेट नहीं किया, मगर डायरेक्टर रिपोर्ट में बोल दिया है कि दैट इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो ये तो बहुत बड़ा वायोलेशन हो गया, कंसोलिडेशन नहीं किया है, और वहां पे डायरेक्टर रिपोर्ट के थ्रू तो ऐसा दिख रहा है कि कंसोलिडेशन तो करना चाहिए. तो ये मटेरियल इनकंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर. तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल डेविएशन और इनकंसिस्टेंसी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करती है, तो हमें उसको ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले ही रिजल्ट करनी पड़े. हाँ, ऐसी अदर इंफॉर्मेशन भी है जिसकी कोई इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं होती. मतलब किसी डायरेक्टर का गलत क्वालिफिकेशंस दे दिया है तो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो उस केस के अंदर जो मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट नहीं करता है, उसमें हमें ज्यादा कोई चीज का इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं. हम छोटा सा डिस्क्लोजर्स डलवा दें उनसे कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में, that is more than sufficient. So this is how to create a alignment between director reports and the auditors reports, and how the auditors responsibility for that under 720. So this is all for our today's session, and now I open the session for question answers. Thank you very much to all the professional colleagues to attending these seminars and give me the opportunity to friends presenting all of you. Yes, it's a very clear, more or less whatever area today I discussed, that is in your day-to-day life you are doing practically in the office. But today we have a good revisions in the lockdown period regarding friends how exactly all these auditing standards we are applying to collect the audit evidence and to produce our opinion for audit report. Clear? Thank you very much to all of you, and I'm very much thankful to Parag Bhai Ravarts and Jai King sir for giving me this opportunity. Thank you.